Good evening, sir. Dr. Venus, you have joined? Dr. Venus? Okay, I think she is not with us. So we are just starting. Good evening, sir. Very good evening, very good evening. Dr. Nikhil is with us. A very happy good evening to all of you. Today the session has to be conducted by Dr. Venus. She is head department of psychology. Anyway, I think she will join us very soon. So आज हमारा कौन सा दिन है निखिल? Sir, this is day 5, and we're going to read unit number 4 today. Yeah. Definitely they will learn unit number 4. We have distributed the entire positive psychology in 5 units. Okay, so today is the 5th day. First day was we have just gone through that inaugural session, and the last day is given to all the participants as well as the validity session will be conducted. In that particular session, we'll distribute the feedback form or say the other information to receive your certificates. So today, Dr. Nikhil will talk about the positive cognitive states and processes. She will able to explore the strengths of the mind in positive psychology. What are the strengths of the mind? So, Dr. Nikhil, you should talk on self-efficacy, mindfulness. You have to talk on flow. You have to talk on spirituality. You have to talk on wisdom. You have to talk on courage. A lot of things. Try to explain self-efficacy के सोर्सेस कुछ केस स्टडीज वगैरह से भी आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइंडफुलनेस के Right, बारे में sir. भी बात करेंगे। राइट, बात करेंगे। प्रैक्टिस में माइंडफुलनेस को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें, ज़्यादा बढ़िया। ओके, if possible give one Sure, or sir. two examples also. Okay, flow is my All right. very favorite topic of cognitive flow, so I love to listen you also. In between I will be on the way, I'm just Sure, sir. driving. Okay, so you continue it. Okay, or rest of session will be taken care by Dr. Venus. She is head department of psychology, MLV, Rajasthan Vidyapeeth University, Udaipur. She is organizing secretary of this workshop. So she will take all the charges. Spirituality पर भी थोड़ी बात Absolutely. करें जरूर. Okay, wisdom is it's considered as a above of all the intelligence, and say above all intelligence, say beyond the intelligence level. So you talk about wisdom also. Okay, so करेज की भी बात Yes, जरूर sir. करें। करेज, मुझे बहुत लगता है करेज के बारे में भी बात करना हमेशा, कि मुझे लगता है कि किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है तो मैं उसको पनिश कर दूं, लेकिन मेरे अंदर वो करेज होगा तभी मैं उसको पनिश करने की सोच सकता हूँ। ओके, सो करेज इज नीडेड। और फिर कुछ छोटा सा कोई एक डॉक्टर वीनस इज विथ अस। सो Good evening, वीनस, sir. you conduct the session now. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Welcome to all candidates, students, निखिल सर, प्रोफेसर अजय चौधरी सर। आज बड़ी हर्ष का विषय है कि हमारा ये 5th डे है। दिस वर्कशॉप स्टार्ट ऑन 7th अप्रैल, और आज हमारा 11th अप्रैल के दिन 5 डेज इसके कंप्लीट होते हैं। और मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट सारे ही कैंडिडेट्स इसमें रोज जुड़ रहे हैं, एंड पीपीटी इज वेरी गुड। मतलब जो लेवल है, निखिल सर आप जो डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर, वंडरफुल लेक्चर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो आज 5th डे, शायद आप 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, एम आई राइट?
ओके, थैंक यू। तो एब्सोल्युटली। आज जी जी जी, तो आज हमारा 4th यूनिट शुरू होने वाला है और अभी मैं देख रही हूँ कि 23 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट्स टू ऑल कि आप इतने सिंसियरली और इतने अच्छे से इसको कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और ये इतनी वर्थफुल हो रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। और लगातार तीसरी कॉन्फ्रेंस होने के बाद सभी स्टूडेंट्स का इतना सहयोग है, उसके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ। एंड नाउ 7:04 हो गए, तो हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं। निखिल सर, नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है, यू विल स्टार्ट नाउ। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू। Surely. Thank you so much. A very warm good evening to all the participants and all the dignitaries available on this platform. मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये चीज़ देख के कि हम कुछ काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उस चीज़ की कंसिस्टेंसी जब बनी रहती है ना, तो वो एक अलग इन्हांस्ड लेवल पर आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो रोज आकर जुड़ रहे हैं, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल रहे हैं, इस इवनिंग आवर को यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सभी को वो सभी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की 4th यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। Good evening, ma'am. I hope this is visible to all. So all the points आऊंगा कि पूरे सेशन में आप मेरे साथ एंड हम आगे बढ़ें। तो क्या ये चीज नजर आ रही है आपको? इज इट विजिबल? इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so shall we begin? All Yes, right. Nikhil sir, Okay, perfect. continue So, it. Nikhil, हम लोग Dr. आज Nikhil, continue it. It is visualized. ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, सो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका टॉपिक और उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी हैं क्योंकि हम इन्हें अपनी रियल लाइफ में रोज एवरी डे कई बार यूज करते हैं, बस उसे नेम करना भूल जाते हैं या थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं इधर उधर। तो आज हम उस चीज़ों को सही तरीके से करना सीखेंगे, सो दैट आगे लाइफ में आप पॉजिटिव साइकोलॉजी को सीखते सीखते लोगों को भी ये सिखाएं कि क्या सही तरीके हो सकते हैं इनको करने के। और जैसे कि सर ने कहा कि ये जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में कुछ केस स्टडीज, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे तो बेटर रहेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस सारे केस स्टडीज को हर एक पॉइंट के साथ एक केस स्टडी को ऐड करूं, कुछ आपके लिए वार्म अप एक्टिविटीज और कुछ टेकन अवेज का होमवर्क और गिव अवेज भी मैं इसमें रखूं। तो मैंने कोशिश की है इस पीपीटी में सभी चीज़ों को इनकलकेट करने की। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। तो हमारी जो कॉग्निटिव स्टेट्स हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस हैं, वो कैसे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बनते हैं और उनका क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम उन चीज़ों को एक्सरसाइज करते हैं। इसकी जो आज की टैगलाइन है वो है एक्सप्लोरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो हमें ये बिल्कुल सच बात है कि हमें नहीं पता कि हमारे माइंड की क्या पावर है, क्या स्ट्रेंथ है। उन स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर कर पाना, उसको समझ पाना, किसी एक लिमिट के बियॉन्ड जाकर देखना, वो है आज हमारा मोटिव। तो यूनिट 4 जो है उसमें जो टॉपिक्स हैं दैट इज सब टॉपिक्स हैं दैट इज सेल्फ एफिकेसी, माइंडफुलनेस, फ्लो, स्पिरिचुअलिटी, विजडम एंड करेज। ये सभी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आज हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। आज हम थोड़ा डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले वही एक क्वेश्चन, एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ एक वार्म अप एक्टिविटी के साथ शुरुआत की जाए। तो आप अगर खुद को अगले 10 सेकंड में अगर आप अपने खुद को पूछें कि ऐसा कौन सा टाइम था लास्ट जब आपने ये फील किया था दैट यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। व्हेन डिड यू लास्ट फील इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ? आपने कब ऐसा सोचा, कब ऐसा आपको लगा कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं? और उस समय what thoughts help you to get through that tough moment recently? ऐसा कब हुआ कि ऐसा कुछ हुआ हो कि आपकी लाइफ में कोई टफ मोमेंट आया हो और उससे गेट थ्रू करने में आप कामयाब हो गए? पहली चीज ये है कि आपको ऐसा कब लगा कि आप अंडर कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं, और फिर आपके ऐसा कौन सा थॉट था जो कैसा लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो बहुत टफ था, लेकिन आपने अपने थॉट्स के थ्रू, अपने कॉग्निटिव पावर के थ्रू उससे पार पाने की कोशिश की है।
ये जब अगर मुझे लगता है, मैं ये मान रहा हूँ, ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं और आप वो फील कर रहे हैं कि आपने इस तरह से डिफिकल्ट टाइम्स में अपने आप को यहाँ से निकाला है और इस तरीके से निकाला है, और इस पूरे थॉट को आपके दिमाग तक पहुंचाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम ये समझ पाए कि हमारे थॉट्स की, हमारे बिलीव्स की कितनी ज्यादा पावर होती है, और उस चीज को 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में फ्लैश आउट करना, रिफ्लेक्ट करना, दिस इज द आइडिया ऑफ दिस एक्टिविटी। तो कभी भी लाइफ में आपको ऐसा लगे दैट यू आर नॉट वर्थ इट एंड यू आर नॉट इनफ, आप वर्थ इट नहीं है, कभी भी आपको ऐसा फील हो, तो आप उन टाइम के बारे में सोचिए जब आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आए हैं और किस तरह से निकल के आए हैं। तो आपको एक ऑटोमेटिक बूस्ट इन चीजों में मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपकी स्ट्रेंथ कई ज्यादा है जितना आप सोच सकते हैं उससे। ऑल राइट, मूविंग अहेड। अब जो आप नेक्स्ट स्लाइड अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं वो 6 कोर पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स। क्या आपको विजिबल है ये 6 कोर पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स? यस सर। ऑल राइट, परफेक्ट। तो ये जो 6 पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स हैं, जिनके बारे में हमने अभी देखा है कि 6 नाम कौन से हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और 6 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है: सेल्फ एफिकेसी, माइंडफुलनेस, फ्लो, स्पिरिचुअलिटी, विजडम एंड करेज। अब आप कुछ देखेंगे, इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और वो हमारी शायद लास्ट क्लास तक हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना इंटरकनेक्टेड है। सेल्फ एफिकेसी के बारे में हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था, तो किसी पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि ये स्ट्रेंथ से कैसे अलग है। तो आज हम एक्चुअली सेल्फ एफिकेसी के बारे में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। सर ने बताया कि फ्लो और विजडम सर के फेवरेट है, तो मैं उस पर और ज्यादा स्ट्रेस देना चाहूंगा, और सर ने फेवरेट बोला है तो मुझे समझ में आता है कि ये इंपॉर्टेंट भी होगा। हमारे सर कभी भी कोई चीज बोलते हैं तो उसका कहीं ना कोई ना कोई मीनिंग होता है, हम हमेशा ये चीज मानते आए हैं। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑल राइट, स्टार्टिंग विद सेल्फ एफिकेसी। हमारा सबसे पहला कोर जो पॉजिटिव प्रोसेस है, स्टेट है, वो है सेल्फ एफिकेसी। अब सेल्फ एफिकेसी क्या चीज है? सेल्फ एफिकेसी एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो ये वो बिलीफ है कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी है कि मैं कोई काम कर सकता हूं। ये मैं अगर सोच पा रहा हूं कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी है कि मैं कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकता हूं, किसी भी गोल तक पहुंच सकता हूं, इसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। मेरी क्षमताओं का होना और मुझे ये पता होना कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। 50 किलो की कोई चीज है या 25 किलो की कोई चीज है, मुझे पता है कि मैं इसको उठा सकता हूँ और उसके ऊपर कोशिश करना, ये मेरी सेल्फ एफिकेसी होगी। बेंड्यूरन ने 1977 में इस डेफिनेशन को दिया था। ये नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही अच्छा है कि दिस इज नॉट ओनली थिंकिंग कि आप कोई काम कर सकते हो, इट इज नोइंग दैट यू हैव द पावर टू फिगर इट आउट। ये सिर्फ सोच नहीं है कि हाँ मैं कर सकता हूं, बल्कि इस चीज को समझना कि मुझे पता है कि मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर वो स्किल्स है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी। खुद की क्षमताओं के बारे में ज्ञान होना, यह है इसकी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? सेल्फ जनरेटेड मोटिवेशन आता है, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, वो होता है। रेजिलियंस आता है, एफर्ट आता है, ये सारी चीजें आती है सो दैट हम चैलेंजेस के अगेंस्ट इसको यूज करके अपना जो गोल है वो अचीव कर सके। सेल्फ एफिकेसी का एक बड़ा ही अच्छा पिक्चर जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है, वो अपने आप को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या अपने आप को प्रमोटेड होता हुआ देख रहा है कि भाई मैंने ये चीज की, मैंने ये अचीव किया और मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ कि मेरे हाथ में आज एक ट्रॉफी है, मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हूँ, मैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हूँ, मुझे प्रमोशन मिला है, मुझे ये मिला है, मुझे एक नया डेजिग्नेशन मिला है। तो वो अपने आप को देख पा रहा है कि हाँ मेरे अंदर इतनी क्षमता है और मेरा बिलीफ है कि मैं एक दिन उस जगह पे पहुंचूंगा। दिस इज नोन एज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी को समझने के कुछ टाइप्स हैं, जैसे हो गया मास्टरिंग द एक्सपीरियंसेस, विकैरियस एक्सपीरियंसेस, वर्बल पर्सुएशन और फिजिकल एंड मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट्स। अब ये क्या चीज होती है ये देखते हैं। तो 4 सोर्सेज हैं सेल्फ एफिकेसी के कि आपकी सेल्फ एफिकेसी आती कहां से है, ये जो आपके दिमाग में जो थॉट है ये आएगा कहां से। सो पहला है हमारा मास्टरी एक्सपीरियंस। मास्टरी एक्सपीरियंस मतलब जो हमारी सक्सेस है वो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है, चाहे वो सक्सेस छोटी है या बड़ी है। आपने छोटे लेवल पे कुछ अचीव किया या बड़े लेवल पे अचीव किया, चाहे जो भी हो,
आप जब कुछ अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस दिलाता है जिससे आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़े। तो यहाँ आप इस चीज को इस तरह से समझिएगा, हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है। दूसरा है विकैरियस एक्सपीरियंस। विकैरियस एक्सपीरियंस आपने, मुझे लगता है कि पहले भी बेंड्यूरा ने जब बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट से बताया था तो आपने वो चीज पढ़ी होगी, जिसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर आता है कि आप जब दूसरों को सक्सेस होते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी ये चीज एक थॉट प्रोवोक होता है, एक थॉट हमको उजागर होता है हमारे अंदर कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं विकैरियस एक्सपीरियंस। फिर आता है वर्बल पर्सुएशन। वर्बल पर्सुएशन ये चीज है कि व्हेन वी गेट एनी इंकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स, हमें जब किसी से कोई भी इंकरेजमेंट मिलता है, कोई हमें पेप टॉक देता है, कोई हमें बूस्ट करता है, कोई हमें मोटिवेट करता है, तो हमें एटलीस्ट उस चीज को ट्राई करने की एक क्षमता आ जाती है कि मैं एटलीस्ट ट्राई तो करूं, ये चीज कहाँ पहुंचती है, क्या पता मैं ये कर पाऊं। ये भी एक सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाने का एक तरीका है। फिर है इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट। ये वो चीज है कि जब हमें कभी भी स्ट्रेस होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, लेकिन उसके ऑपोजिट जब हम बहुत ज्यादा काम है, रिलैक्स्ड हैं, तो हमारा बिलीव जो है वो बढ़ता है। तो हमें ये चीज सीखने की जरूरत है कि जब भी हम किसी चैलेंजिंग टास्क को कर रहे हैं तो हमें इमोशनल लेवल पे और फिजियोलॉजिकल लेवल पे एकदम काम, रिलैक्स्ड और फोकस्ड होने की जरूरत है, क्योंकि उस वजह से हमारी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज और एनहांस होगी। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ एफिकेसी की केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी कुछ इस तरह से है कि एक राहुल नाम का एक लड़का है जो कि प्रेजेंटेशन एंजाइटी से सफर कर रहा है, कि जहां उसको कुछ प्रेजेंट करना पड़ता है, अपने क्लास के सामने कुछ बोलना पड़ता है, पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है, उसको इस चीज में प्रॉब्लम आती है, स्टेज फियर उसको फील होता है। तो राहुल, एक बार उसके साथ क्या हुआ था वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। राहुल एक बार जब अपने कॉलेज प्रेजेंटेशन में था तो वो एकदम फ्रीज हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाया, और इस वजह से उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन और इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। तो ओवर टाइम उसने ये सोचा कि उसने वो प्रैक्टिस करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनके फ्रेंड्स के सामने बोलेगा, उन्हें पूछेगा कि मैंने कहाँ गलती की, वो मुझे बताओ, अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेगा ताकि उनको सुन के वापस इंप्रूव कर सके। और इस तरह से उसने अपने ऊपर काम किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक थॉट था कि हाँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस चीज को ठीक कर सकता हूँ। इसी को सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। और नेक्स्ट टाइम उसने जब फिर से पार्टिसिपेट किया तो वो बहुत क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोला, और उसका जो बिलीफ है उसकी एबिलिटी के अंदर, वो भी उस चीज को ग्रो हुआ। और इसी चीज को हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाया, अपनी बात रख पाया, एंड दिस इज हाउ ही ओवरकम हिज प्रॉब्लम। और इस पूरी चीज को, उसने जो चीजें की है, इसको हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। सो आई होप कि आपको सेल्फ एफिकेसी क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Anyone from the audience? Yes, sir. Yes, sir. All right. Great. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंट टाइम में जरूरत बहुत आन पड़ी। हर कोई जिसको देखे वो स्ट्रेस्ड है, वो एंग्शियस है, वो परेशान है, उसका मूड लो है, कोई क्या, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। माइंडफुलनेस चीज क्या होती है वो पहले समझते हैं। As you can see on your screens, there are different things written. लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ लेके आना चाहूंगा कि माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप जब अभी प्रेजेंट मोमेंट में जब फुली अवेयर हो, बिना किसी जजमेंट के आप वहां पर प्रेजेंट हो, इसको सिर्फ इतना, मात्र इतना कर पाना माइंडफुलनेस कहलाता है। कि आप जब आज के अभी जो मोमेंट चल रहा है, अभी जो मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, आप अभी किसी क्लास में हैं, क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है, कोई चीज बताई जा रही है और आप माइंडफुलनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपका ब्रेन इस चीज को प्रोसेस कर पा रहा है और यहीं पे आपके साथ मेंटली प्रेजेंट है, इस चीज को बोलते हैं माइंडफुलनेस। ये हमें कैसे हेल्प करता है? ये हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, सबको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है और हमें ओवरवेल्म होने से रोकता है। ओवरवेल्म होने का यहाँ पर ये मतलब है माय डियर फ्रेंड्स कि हम बहुत सारी चीजें जब हमारी तरफ आती है तो हम बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को सेटल करना, सबको ऑब्जर्व करके रखना, सही जगह से सही जगह पर प्लेस करना, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से होता क्या है? प्रेजेंट में रहने से होता क्या है?
हमारी एंजाइटी कम हो जाती है, क्योंकि हम जनरली एंजाइटी होती किस पे हमको, दो चीजों पे होती है, या तो पास्ट जो बीत गया या फ्यूचर जो आने वाला है, दोनों पे ही हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। तो अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी एंजाइटी कम होती है, हमारा फोकस इंप्रूव होता है, और सबसे अच्छी चीज हमारा इमोशनल रेगुलेशन जो है वो बहुत ही शानदार होने लगता है, बहुत बेटर होने लगता है, इनहैंस होने लगता है। इसी के साथ हम आ गए हैं एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग इमेज के ऊपर। आप इमेज आप देख पा रहे हो कि ये चीज, ये जो दोनों इमेज है, ये जो दोनों पार्ट ऑफ द इमेज है, ये आपके हाथ में है कि आपको आपका माइंड फुल रखना है या माइंडफुल रखना है। ठीक है, दो बहुत अलग चीज है और बहुत अच्छी तरह से समझा रखी है। पहले वाले लेफ्ट साइड वाले पिक्चर में क्या है कि आपका दिमाग बहुत सारी चीजों से भरा है, और दूसरे वाले में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अब माइंड को फुल रखना है या माइंडफुल रखना है, ये हमें डिसाइड करना होता है अपने थॉट्स। माइंडफुलनेस की बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला, स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है। ठीक है, हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होने लगता है, ओवरवेलमिंग सिचुएशन से बच जाता है। सो ये काफी अच्छी चीज है। दूसरा है हमारा फोकस अच्छा हो जाता है, हम अटेंशन देने लगते हैं चीजों पे और हमारा डिस्ट्रैक्शन जो है वो खत्म होने लगता है। तीसरी चीज, हमारा इमोशनल बैलेंस है वो शानदार तरीके से बना रहता है, और हम इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते। हमें पता होता है कि कब, कहाँ, कितना, कैसे बोलना है, क्या चीज में चुप रहना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें इमोशनल बैलेंस से आती है और वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से बढ़ती है। एक होता है रिलेशनशिप क्वालिटी। जब हम माइंडफुलनेस सीख जाते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि सामने वाला कैसे सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, फिर हम वही चीज कम्युनिकेट कर पाते हैं, और इसकी मदद से हमारे रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छे होने लगते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी रिलेशनशिप ऐसा है जो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके बारे में सोचिए, बैठिए और ये जानने की कोशिश करिए कि इसमें आप अब क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि रिलेशनशिप को सुधारा जा सके, माइंडफुलनेस की मदद से सुधारा जा सके। और आप खुद देखेंगे कि कुछ टाइम बाद माइंडफुलनेस की हेल्प से आप इस चीज को बेटर कर पाए हैं, आपके रिश्ते लोगों के साथ में सुधरने लगे। कुछ माइंडफुलनेस मेडिटेशंस जो होते हैं उससे और क्या क्या बेनिफिट्स होता है कि आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज जो है वो बेटर हो जाती है, स्ट्रेस कम होने लगता है, एंजाइटी को मैनेज करना आपको आ जाएगा, किसी भी चीज का एडिक्शन जो है उसको आप ओवरकम कर पाओगे, पेन को कंट्रोल कर पाओगे, और आपके अंदर की जो ओवरऑल काइंडनेस है वो बढ़ने लगेगी। आपको हर चीज रिलैक्स, इजी, काम, कंट्रोल लगने लगेगी। यही सही तरीका है ये जानने का कि आपके अंदर माइंडफुलनेस इनहैंस हो रही है या नहीं हो रही है। माइंडफुलनेस को और बेटर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक केस स्टडी है। माया नाम की एक लड़की थी। अब माया के साथ क्या प्रॉब्लम थी? माया को एग्जामिनेशन स्ट्रेस हुआ करता था। उसके दौरान अब क्या होता था कि माया को एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा पैनिक होता था। जब भी एग्जाम देने जाने वाली होती थी या जाती थी तो, या एग्जाम आने वाले हैं तो बहुत पैनिक करती थी। उसने माइंडफुलनेस करना सीखा। ठीक है, अब माइंडफुलनेस की मदद से क्या हुआ कि उसने डीप ब्रीदिंग करना सीखा। हर दिन डीप ब्रीदिंग किया उसने 5 से 10 मिनट के लिए, और स्पेशली एग्जाम से पहले भी किया। तो उसने ये पाया कि एग्जाम एंजाइटी कम हो गई थी, वो बेटर फील कर रही थी, मेंटली बहुत क्लियर थी। उसे समझ आने लगा था कि चाहे डर कर, चाहे रो कर, चाहे हंस कर एग्जाम मुझे देने ही है, तो मुझे बेटर है कि मुझे हंसकर और एक स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ में एग्जाम देने चाहिए। जब उसने ये चीज समझ आई तो उसने उसके एग्जाम भी अच्छे से दिए, एग्जाम को क्लियर भी किया और ज्यादा बेटर फील करने लगी। तो यहाँ पर इस तरह से उसने माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है। अब हम बात करेंगे थर्ड और काफी एक मैच्योर टॉपिक के बारे में, जो कि फ्लो है। मैं मैच्योर इसलिए कहना चाह रहा हूं यहाँ पे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एज में तो बढ़ जाते हैं, आप अपने फिजिकल और मेंटल एज में तो बढ़ गए हैं, लेकिन लोग उस फ्लो तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं लग पाता कि मेरा फ्लो है क्या, क्या चीज है। वो फाइंड आउट करना कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम आज उसके बारे में थोड़ा और अच्छे समझते हैं, देखते हैं क्या हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं। तो फ्लो एक वो मेंटल स्टेट है जिसमें एक इंसान कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने का मतलब आपको ना टाइम का होश है, ना आप कहाँ हो ये पता है, ना आपने क्या कपड़े पहने हैं वो पता है। आप बस आपको ये पता है कि आप एक काम है और आप है, और आप उस काम को आप खुद से मिलाने की कोशिश करते हैं। आप वो काम कर नहीं रहे हैं,
ये बहुत डिफरेंट है, इस चीज का समझिएगा। आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आप और काम दोनों एक हो रहे हो। अब आप उस काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो कि आपको लग रहा है कि एक फ्लो है, कि जैसे पानी का जो नल है वो नल खोल दिया और पानी बहता चला जा रहा है, उस तरह से आप उस काम के साथ बहते चले जा रहे हैं। इसमें टाइम जो है वो डिसअपियर हो जाता है, और आपको एक्सपीरियंस जो होते हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो इतना रिवॉर्डिंग होते हैं कि आपको ये समझ ही नहीं आता है कि कब इसका शुरू किया और कब इसको खत्म करना भी है या नहीं है। इस तरह से फ्लो हमारे लाइफ में काम करता है। अब फ्लो की एक बहुत खासियत है, जबरदस्त खासियत है, वो ये है कि हमें जो हमारा फ्लो है वो ना तो बहुत इजी चाहिए ना बहुत हार्ड चाहिए। हमें उसको एकदम एकदम परफेक्ट लेवल पे चाहिए कि जितना मेरी लाइफ में चैलेंज आया है उतना ही मेरे स्किल लेवल ने उस चीज को सेटल कर लिया है। अब ना तो मुझे कोई टास्क बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, ना बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। अब मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि हाँ, मेरे अंदर इतना स्किल सेट है कि मैं इस चैलेंज को इजीली काम कर पाऊंगा। ठीक है, जो लोग अचीवमेंट मोटिवेशन की हाई ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन होते हैं, वो भी हमेशा मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी टास्क चाहते हैं, ना बहुत इजी चाहते हैं ना बहुत टफ चाहते हैं। वो कैसे है वो मैं आने वाले अगले फिगर में आपको समझाऊंगा, जो कि इसके बाद आएगा। ओके, उससे पहले फ्लो को समझने के लिए 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कि फ्लो का मतलब ही क्या होता है, कि जब आप फ्लो में हैं, किसी काम के फ्लो में है, तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जबरदस्त कंसंट्रेशन आपका बन जाता है और किसी भी तरफ आपकी कोई अटेंशन रहती ही नहीं है, आप कुछ और नहीं सोचते हो, आप उसी काम को करते रहते हो और आपको टाइम का कोई पता नहीं रहता है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस काम में खो गए, चाहे फिर वो पेंटिंग है, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो डांसिंग है, चाहे आपको लिखना पसंद है तो वो राइटिंग है ना, चाहे वो एडवेंचर स्पोर्ट है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो एडवेंचर स्पोर्ट में इतना हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कोई, बस वो करते रहते हैं। और जो जैसे स्पोर्ट्समैन है वो रात दिन बस खेलते रहते हैं, तो उन्हें उस चीज से बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश होता है, उन्हें अच्छा फील होता है, उन्हें यूफोरिया की फीलिंग आती है। सो दिस इज फ्लो। आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिससे फ्लो बनता है। ओके, दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल स्लाइड आप सभी के लिए। अगर आप उस फ्लो को ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा कि पहला है क्लियर गोल्स। अगर आपकी गोल बहुत क्लियर है, आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, कहाँ तक जाना है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगा उस फ्लो को पाना। दूसरा है इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको पता है कि आप ये देख पा रहे हो, यू सी हाउ यू आर डूइंग इन द मोमेंट, कि आपने इमीडिएटली कोई काम किया और आपको फीडबैक मिल गया कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, तो आप उसी समय इंप्रूव कर जाओगे। डीप फोकस, कि यहाँ पर फ्लो में डिस्ट्रैक्शन का कोई काम नहीं। फ्लो में आप डीपली फोकस्ड होते हो किसी काम को करने के लिए, आप उसमें खो जाते हो, वो है आपका फ्लो। अगर आप किसी ऐसे काम को कर पा रहे हैं तो वही आपका फ्लो है, ये मान के चलिएगा। वो कुछ भी हो सकता है, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, कोडिंग, स्पोर्ट्स, राइटिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। आगे जो आने वाले स्लाइड है, यहाँ पर आप इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक तरफ चैलेंजेस हैं और एक तरफ एबिलिटीज है। तो अब ये देखिए, जब चैलेंजेस ज्यादा होंगे और एबिलिटी कम होगी तो आपको एंजाइटी होगी, ऑरेंज वाला पार्ट। ओके, आप ये फिगर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे एवरीवन? Yes, sir. Yes, nice, Okay, nice, very good, nicely great. presented. ओके सर, ओके, थैंक यू। तो चैलेंजेस जब ज्यादा होंगे और एबिलिटीज आपकी कम होगी तो आप देखेंगे कि ऑरेंज वाला पार्ट होगा, जिससे एंजाइटी कहते हैं। जब चैलेंजेस कम होंगे और एबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये तो वही बात हो गई कि 140 की आईक्यू का बच्चा है और उसको आपने 4th क्लास की 7th क्लास 8th क्लास के मैथ सम सॉल्व करने के लिए दे दिए, तो उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस कम है, तो वो बोर हो जाएगा, बोर्डम आएगा। फ्लो वो चीज है जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ चैलेंजेस आते हैं और एम्पल अमाउंट ऑफ एबिलिटीज आती है। तो ये बीच का जो ग्रीन वाला एरिया है वो आपका फ्लो बनाता है। इस तरह से हम फ्लो को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द केस स्टडी ऑफ द फ्लो। अब केस स्टडी क्या है? अर्जुन नाम का एक लड़का है, वो गिटार प्ले करता है एंड ही इज अ गिटारिस्ट बाय सोल, जिसको गिटार बजाना बहुत पसंद है। तो अर्जुन जो है वो जब भी गिटार प्ले करता है वो बहुत ज्यादा अलाइव फील करता है, वो म्यूजिक में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसको ना टाइम का पता रहता है कि कब उसने प्रैक्टिस शुरू की थी, उसको कोई और भी काम है, और वो इस तरह से और इसी के साथ साथ यही नहीं, उसका स्ट्रेस भी जब हटने लगता है, मेल्ट अवे होने लगता है। तो इस तरह से वो नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव की तरफ बढ़ता चला जाता है सिर्फ फ्लो को प्रैक्टिस करने से। और नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव की तरफ बढ़ने का से क्या मतलब है? पॉजिटिव साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में लेकर आना, उतारना। इस तरह से फ्लो इंसान की स्किल को भी बढ़ाता है
और इमोशनल वेलबींग को भी एनहांस करता है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? इसी के आगे जो 2 वर्ड दे रखे हैं वही इसका मतलब है कि कनेक्शन और मीनिंग। स्पिरिचुअलिटी सीधा सीधा हमें ये बताता है कि जब आप खुद से, खुद के ऊपर ग्रेटर सेल्फ, कि आप खुद एक सेल्फ है, जब आप ग्रेटर सेल्फ के साथ में जुड़ने की कोशिश करते हैं, आप ये देखते हैं कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है और मुझे कैसे कनेक्ट करना है। वो जैसे आप हिंदी में कई बार आपने सेंटेंस सुना होगा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये एग्जैक्टली वही चीज है कि आप एक जो ग्रेट गॉड है, जो सुपर नेचुरल पावर है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये जाके जब आप सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। अब मैं आपका ध्यान इस तरफ चाहूंगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ना तो रिलीजन होता है, ना ह्यूमैनिटी होता है, ना पर्सनल वैल्यूज होता है, ना नेचर होता है। बेसिकली ये सभी का समागम, ये सभी का जो कॉम्बिनेशन है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। सिर्फ एक रिलीजन को मानने वाला या रिलीजियस प्रैक्टिस करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, इसको स्पिरिचुअल होना नहीं कहते। ये एक तरीका हो सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको स्पिरिचुअलिटी नहीं कहते हैं। तो प्लीज इसको इन दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। इनफैक्ट आपका रिलीजन, आपका नेचर, आपकी ह्यूमैनिटी, आपकी मतलब ह्यूमैनिटी में आपकी इंसानियत, आपकी पर्सनल वैल्यूज, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके प्रिंसिपल्स, आपके मैनर्स, एटिकेट्स, आपकी ये सब चीजों को मिलकर स्पिरिचुअलिटी बनती है, जिसमें आप अपने सेल्फ को ग्रेटर सेल्फ के साथ में कनेक्ट करते हैं। इसके दौरान जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पीस, रिलैक्सिंग, मीनिंगफुल फील होता है और हार्डशिप से आप दूर हटते चले जाते हैं। आपने जब यही मान लिया, यही बिलीफ में आ गए कि बस अब मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूँ और अब जो भी चीजें होंगी बस मैं कर्म करता चला जाऊंगा और जो भी आगे चीजें आएंगी वो अपने आप शॉर्ट होती चली जाएंगी, तो आपने सरेंडर कर दिया। जब आप सरेंडर करते हैं तो आपकी सारी हार्डशिप जो है वो खत्म होती चली जाती। एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा पिक्चर मुझे मिला था, तो मुझे सोचा आपके साथ में इसमें पीपीटी में ऐड कर दिया जाए। स्पिरिचुअलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या? अवेकनिंग, कंपैशन, एनलाइटमेंट, फॉरगिवनेस, जॉय, इनर पीस एंड कर्मा। ये सब चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक तरह से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इतना ही ब्यूटीफुल जितना ये पिक्चर है, उतना ही ब्यूटीफुल हमारी फीलिंग होने लगती है जब हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सरसाइज करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अब आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या वो जानिए। ये लोगों को कोप अप करने में हेल्प करता है किसी भी लॉस से, किसी भी ग्रीफ से। ठीक है, खुदा ना खास्ता मतलब ऐसा कभी ना हो, मैं चाहूंगा कि कभी ना हो, लेकिन फिर भी ये एक नियम है कि हम जैसे आए हैं वैसे हम जाते भी हैं। तो जैसे हम जाते हैं वैसे ही हमारे आसपास के लोग हैं वो भी जाते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है कि हम अपने लव्ड वन को खो देते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ। तो उस केस में अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को बढ़ाएं तो आप उस ग्रीफ से, उस लॉस से ऊपर उठने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हम लोगों को जब माफ कर देते हैं, हम कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये काफी इंक्रीज करता है स्पिरिचुअलिटी को। हमें समझ में आता है कि हम जिस तरह से हर चीज के लिए शुक्रगुजार हैं कि हमें आज खाना मिला है, आज हमारे सर पे छत है, हमें इतनी सारी एमिनिटीज, सारी फैसिलिटीज है हमारे पास, ये सब हमें स्पिरिचुअल होना सिखाता है, बढ़ाता है स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग हमारे अंदर। अब एक चीज और, स्पिरिचुअल होना कमजोरी की निशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारी रेजिलियंस को बढ़ाने की बात भी, कि हमारे साथ अगर कुछ भी ऐसा हो गया है कि कोई ट्रॉमा हो गया है, तो उस ट्रॉमा से बाहर आना, अपने आप को रेजिलियंट बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना, और इस तरह से बनाना कि हम उस चीज से ओवरकम कर जाएं और आगे जाएं और फ्लॉरिश करें, जो कि हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी भी सिखाता है। वो चीज भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है। स्पिरिचुअलिटी की केस स्टडी की बात करूं तो फातिमा नाम की एक लड़की है जिसकी जर्नी कुछ इस तरह से कि उसने अपने एक लव्ड वन को खोया है और उसके दुख में, उसके ग्रीफ में वो बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। तो ये उसकी एक स्टोरी है। उसने अपने फादर को खो दिया और उसके बाद से वो बार बार खोई रहती थी, वो उस चीज से बाहर नहीं आ पाती थी। लेकिन जब उसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला तो उसने प्रेयर्स के थ्रू प्रेयर करने की कोशिश की, नेचुरल वॉक्स लेने की कोशिश की, उन चीजों को लिखा, अपने अब प्रॉपरली वेंट आउट किया प्रोडक्टिव तरीके से, और अपने बिलीव्स को रिकनेक्ट किया, और इस तरह से उसे पीस हासिल हुआ, उसे सुकून
का क्या मतलब होता है उसे समझ आया। और ये सब कैसे हुआ? जब उसने स्पिरिचुअलिटी वाली प्रैक्टिस करना शुरू किया तब। और साथ ही साथ जब उसे ये चीज समझ आ गई तो उसने वॉलंटियरिंग भी की। वॉलंटियरिंग मतलब वो चीज होती है कि आप जिस चीज से बाहर आए हो, ये अक्सर ग्रुप थेरेपीज में होता है कि आपने कोई चीज ओवरकम कर ली तो आप बाकी के लोगों को भी ओवरकम करना सिखाते हैं, जस्ट लाइक अ मेंटोर और सब मेंटोर। इसको बोलते हैं वॉलंटियरिंग। तो फातिमा ने भी उस वॉलंटियरिंग को किया कि जो लोग ग्रीफ में थे वो ग्रीफ क्लब उसने ज्वाइन किए और उसने लोगों को हेल्प की। तो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की जा सकती है, जहां आप खुद भी उस चीज से बाहर आ सकते हैं और आसपास के लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। और लोगों को हेल्प करना भी स्पिरिचुअलिटी का एक फेस होता है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बड़ा ही सुंदर सा कोट है जो कि मरियम विलियमसन ने दिया है कि द स्पिरिचुअल जर्नी इज द अनलर्निंग ऑफ फियर इन द एक्सेप्टेंस ऑफ लव। जब आप डर से ऊपर उठ के, डर को हटाकर लव को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, वो होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की सही शुरुआत। आगे बढ़ते हैं, विजडम पे चलते हैं। विजडम, जैसा कि सर ने बताया कि विजडम मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मुझे जब विजडम के बारे में एक बात पता चली तो मुझे, मेरे लिए बहुत ही एनलाइटनिंग बात थी। लोगों को लगता है नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि, और ये बात सच भी है, कि नॉलेज को जब सही तरीके से यूज किया जाए, आपको चाहे आपके पास इस दुनिया की अथाह नॉलेज और एजुकेशन क्यों ना आ जाए, अगर आप उसको सही जगह पे यूज नहीं कर सकते तो वो वेस्ट है, वो बेकार है। तो जब आप नॉलेज को, इंटेलिजेंस को राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे यूज कर पाएंगे, उसको कहते हैं विजडम। सो विजडम सिर्फ नॉलेज नहीं होता, उसके बारे में सही समझ आना, इंसाइट डेवलप होना, एम्पैथी होना, एक्सपीरियंस होना, इस चीज को, और साउंड जजमेंट ले पाना, सही जगह पे सही समय पे सही काम कर पाना, इसको बोलते हैं। इंसान वाइज होगा, जितना इंसान विजडम में होगा उतना वो हम्बल होगा, उतना डाउन टू अर्थ होगा। उसे पता है कि जितना वो डाउन टू अर्थ रहेगा उतना उस चीज को और ज्यादा समझ पाएगा और ज्यादा अंदर अपने आत्मसार कर पाएगा। इसलिए विजडम वाले जो लोग हैं, वाइज लोग हैं, समझदार जो इंसान है, वो हमेशा डाउन टू अर्थ और हम्बल होते हैं। तो इस चीज की पहचान अगर आपको करनी है तो इस चीज से आप इंसान की पहचान कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कोट, कि जब आपको नॉलेज एक्वायर करनी है तो आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब आपको विजडम एक्वायर करनी है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपके आसपास की सारी जो चीजें हो रही हैं उसको जब ऑब्जर्व करके आप चलेंगे तो उस चीज को बोलते हैं आप विजडम। कि अगर आपके पास पैसा है, आप अपनी नॉलेज यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, लोगों में पैसा बांटेंगे, कि लोगों को पैसा मिलेगा तो उनकी भूख खत्म होगी, तो फिर उनको अच्छा लगेगा और वो खुश रहेंगे। ये आपकी नॉलेज कहती है। लेकिन आपकी विजडम क्या कहेगी, कि अगर आपको सही में लोगों को हेल्प करनी है, तो जो फॉर एग्जांपल जो बच्चे हैं, जैसे वो सिग्नल पे हैं और भीख मांगते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप उस बच्चे की स्कूल की फीस पे करेंगे ताकि वो बच्चा स्कूल जाए। वो स्कूल जाएगा, वो पढ़ेगा, लिखेगा, वो ऐसा इंसान बनेगा जो खुद कमा पाएगा। जब वो खुद कमाएगा तो उसकी भूख भी मिटाएगा, 4 और लोगों की भूख मिटाएगा, और आगे ये सर्कल जो है वो उसका विशेष लूप खत्म हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है नॉलेज और विजडम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजडम की बात करिए यहाँ पे। सो पर्सपेक्टिव टेकिंग, कि आप सिचुएशन की सारी चीजों को, सारे पहलुओं को समझ के उसके बाद जो डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग। एक होता है इमोशनल मेच्योरिटी। आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि आप जो भी कोई टफ टाइम आता है, जो भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उसमें बहुत काम और रिलैक्स होके डिसीजन ले पाते हैं। आप हड़बड़ाहट में कुछ गलत डिसीजन नहीं लेते। तीसरा है ओपननेस एंड मॉडेस्टी, कि आप हर चीज के लिए रेडी है, कि आप ये समझ चुके, आपको सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता। आपको ये पता होना चाहिए। जिसको ये लग गया कि मुझे सब कुछ आता है, उसकी विजडम खत्म है। तो आपको यही समझना है कि मुझे नहीं आता है, मेरे को बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है, और मैं नए नए तरीकों से नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा ओतप्रोत हूँ, हमेशा तैयार हूँ। ये आपकी मॉडेस्टी और ये आपका ओपननेस आपको कहता है। और यही सारी चीजें विजडम का एक बहुत अच्छा आईना है। अगर आपको विजडम एक्चुअली में कभी चाहिए जीवन में और आप ये चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप विजडम के और करीब जा पाएंगे। विजडम की जो केस स्टडी है उसमें एक पर्सन है जिनका नाम नीरज है, और वो एक स्टार्टअप मेंटोर है। हुआ क्या उनके साथ कि उन्होंने अपना एक बिजनेस खोला था जो कि फेल हो गया। उन्हें लगा कि अब इसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे मैं इस चीज को क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने और ज्यादा बिजनेसेस को करने की बजाय
अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया और साथ ही साथ मेंटोर बन गए कि अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो टेक्निकल स्किल्स खुद भी सीख रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं और डिसअपॉइंटमेंट से हैंडल करना भी सिखा रहे हैं कि कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप कैसे काम करेंगे, अपने अपने बिजनेस में कैसे वैल्यूज को इनकलकेट करेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली वो खुद भी ग्रो कर रहे हैं और दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। ये सही मायने में विजडम कहलाता है। अब आता है करेज। करेज इज द हार्ट ऑफ द एक्शन, कि आप कोई भी एक्शन लेते हैं जब भी, तो उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, वो करेज कहलाता है। अब मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमेशा हमें ऐसा लगता है करेज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाना ऐसी जगह पे जिसको हम बोलते हैं ना हीरोइक, है ना, जिसको बोलते हैं हीरोइक होना। हमेशा हीरोइक होना करेज नहीं होता। कि आपने किसी को कुछ ऐसा सिचुएशन आया तो आपने लड़ पड़ के कोई काम करवा दिया, या मतलब वो डिशुम डिशुम करके कोई काम हो गया तो ये मेरा करेज हो गया, नहीं, इस चीज को करेज नहीं कहते। करेज थोड़ा सा अलग होता है। करेज बेसिकली वो एबिलिटी है कि आप ये समझ पाए कि चाहे कोई भी सिचुएशन है, कितनी भी डरावनी सिचुएशन क्यों नहीं है, कितना भी फियरफुल क्यों कुछ बात ना हो गई हो, मैं उसमें एक्ट कर सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हुए हमारे हाथ पैर फूल जाते, उस चीज को ओवरकम कर पाना, वही आपका करेज है। करेज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है कि भाई इस इंसान को तो किसी चीज का डर नहीं है, इसको करेज नहीं कहते, ठीक है। बल्कि इस पर्टिकुलर चीज को करेज कहते हैं कि आप उस सभी डर वाली सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन में, प्रॉब्लम्स में, ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस में जब आगे बढ़ सकते हैं, व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, कि चाहे कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते रहो, चीजों को डॉज करो, चीजों को फेस करो, चीजों के थपेड़े खाओ, पर खड़े रहो, वो होता है आपका सही करेज, ठीक है। अब करेज जो है वो 3 तरीके का हो सकता है, फिजिकल करेज, मॉरल करेज और इमोशनल करेज। आगे समझने से पहले एक ये कोट बड़ा ही अच्छा है, मुझे बड़ा ही पसंद है ये कोट, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है कि इट टेक्स करेज टू ग्रो अप एंड बिकम हु यू रियली आर। अगर आपको सच में वो बनना है जो आप हैं, तो इसके लिए बहुत करेज चाहिए और आपको काम करना पड़ता है, आपको ग्रो करना पड़ता है ताकि आप एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंच पाए जो आप डिजर्व करते हैं। सो दिस इज करेज। अब करेज के हम टाइप्स देख रहे थे। तो पहला होता है फिजिकल करेज, कि ऐसी चीजें करना कि अपनी पर्सनल सेफ्टी को भी कई बार रिस्क में डाल के दूसरों को हेल्प करना। ऐसी कोई सिचुएशन आन पड़ी है जहां पर आपको अपनी सेफ्टी की चिंता किए बना जब आप दूसरों को हेल्प कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल करेज। दूसरा होता है मॉरल करेज, कि जो चीज सही है उसके साथ खड़े रहना। आपके साथ कौन खड़ा है, कितने लोग खड़े हैं, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, डजंट मैटर, अगर आप वहां पर हैं और आप सही के लिए खड़े हैं, उसको बोलते हैं मॉरल करेज। तीसरा होता है साइकोलॉजिकल करेज। साइकोलॉजिकल करेज मतलब अपने अंदर के डर का सामना करना, वल्नरेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा, इन सबको फेस करना, इनसे ऊपर उठना और इनको फेस करके इनको रिड्यूस करने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल करेज। तो ये 3 तरह के करेज जो है वो हमने अभी देखे। इसके आगे आगे चले तो हमारे पास सभी और पॉइंट्स की तरह इस पॉइंट में भी एक केस स्टडी है। ये केस स्टडी है अंजलि की, जो कि एक विसल ब्लोअर है। अब विसल ब्लोअर अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो बाकी सब लोग, जैसे पूरी दुनिया है, वो कोई गलत काम होते हुए देख रही है, कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन अंजलि वो एक इंसान है जो जिसने विसल ब्लो की है, जिसने बताया है कि ये जो चीज हो रही है यहाँ पे, ये प्रैक्टिस गलत है और चाहे आप कोई कितना भी कुछ भी कह ले, मैं इसको अपोज करती हूँ और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। इसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो अंजलि जो है, उसके आसपास कुछ गलत प्रैक्टिसेस हो रही थी, उसको बहुत सारा पीयर प्रेशर था उसके लोगों, आसपास के लोगों से कि नहीं नहीं मत बोलो, क्या जरूरत है तुम्हें बीच में पढ़ने की, प्रॉब्लम में आ जाओगे तुम लोग, लेकिन उसने इस चीज को नकारा। उसने कहा नहीं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मैं इस चीज के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, जो भी चीज गलत मेरे साथ हो रही है या किसी और के साथ हो रही है। उसको पहले तो बहुत ज्यादा आइसोलेट किया, लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन उसने वो ऑनेस्टी को बनाए रखा और इसकी वजह से कई सारे चेंजेस आए, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई, वो गलत काम जो हो रहा था वो खत्म हो गया और उसकी करेज की वजह से एक चेंज आया। और ये चेंज ही है वो करेज को और ज्यादा मोटिवेट करता है कि आप और करेजियस टास्क को करें, जिसकी वजह से सोसाइटी में आपके आसपास एक पॉजिटिव चेंज आ सके। चलिए, अब आफ्टर रीडिंग ऑल दिस, अब हम करते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन
और रिफ्लेक्शन बीच में रुक के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं. दैट इज व्हाई इट इज रिटन पॉज, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट. तो अब मैं आपसे 1 या 2 मिनट चाहूंगा इन चीजों के ऊपर बात करने से कि हमने जो 6 चीजें पढ़ी, ये 6 कॉग्निटिव स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ी है, इसमें सबसे ज्यादा आप आइडेंटिफाई किस चीज से करते हैं, कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अप्रोच कर रही है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप सभी अपने ग्रुप में डाल सकते हैं. जैसे कि आप सभी लोग अपना जो ग्रुप है उसमें कॉन्स्टेंटली जो आंसर करते रहते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कुछ पढ़ने की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस होमवर्क को बहुत सीरियसली भी लेते हैं. सो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये आंसर करना है, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, कि कौन सी ऐसी 6 कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है, इसमें से कौन सी एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसमें आप सबसे ज्यादा आप इसके साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप उसके साथ सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो. सेकंड क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको डेवलप करनी है, कि आपको लगता है ये ऐसी स्ट्रेंथ है जो मेरे अंदर थोड़ी सी इसकी मुझे कमी लगती है, इसको डेवलप करना. और मैं ये चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो इंसान ये सेकंड वाले क्वेश्चन पे काम कर पा रहा है ना, उसका पॉजिटिविटी का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर होने वाला है कुछ टाइम में. क्यों? उसका एक रीजन है. उसका एक रीजन ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी खामियों के ऊपर काम कर पाते हैं. सबको अच्छा देखने की आदत है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ऐसा है, मेरे अंदर वैसा है. ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमें सब पता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं. तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस फियर को फाइट करें, कि आपके अंदर की जो भी खामियां हैं, आपको लगता है मेरे अंदर ये थोड़ी सी कमी है, मुझे इसके ऊपर काम करना है, इसको डेवलप करना है, इसको बेटर बनाना है, ये आपका सबसे अच्छा एक होमवर्क निकल के आएगा जो आपके डेली लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट स्मॉल स्टेप कैन यू टेक दिस वीक टू प्रैक्टिस इट. अब जब आपको पता लग गया है कि आपको इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे काम करना है, तो आप इस वीक में या अगले वीक में या जो भी आपका जो प्लानिंग है, प्लान ऑफ एक्शन है, वो क्या बनाएंगे, कौन कौन से ऐसे स्मॉल स्टेप्स लेंगे ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें, उसे एनहांस कर सकें, उसको बेटर बना सकें. ये जो है आपका होमवर्क है, और मुझे लगता है ये अगर होमवर्क आप करेंगे तो आपको आपका एक तरह से एनलाइटमेंट होगा. आपको समझ आएगा कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों की और ज्यादा जरूरत है, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है. सो लेट्स टेक अ समरी ऑफ द की कंसेप्ट्स, कि और थोड़े की कंसेप्ट्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मैंने कुछ फ्रेजेस इसमें मेंशन किए हैं ताकि हमने जो पिछले 1 घंटे में पढ़ा हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें. सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है? कि बिलीव यू कैन एक्ट. आपका ये बिलीव हो जाना कि मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ. ठीक है, आपको कोई गाड़ी दे दी कि मैं ये गाड़ी चला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आपने देखी और आपने कह दिया हाँ ये गाड़ी मैं चला लूंगा, इसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी. नेक्स्ट है माइंडफुलनेस. माइंडफुल मतलब स्टे प्रेजेंट. आप अभी इस मोमेंट में अगर प्रेजेंट हैं तो ये माइंडफुलनेस का होने का एक तरीका है. ना पास्ट में रहना, ना फ्यूचर में रहना. कहाँ रहना? यहाँ, आज, अभी, प्रेजेंट में रहना, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस. तीसरा है फ्लो. इंगेज हो जाए और उनके साथ आप एम्पैथाइज कर पाए. हम सभी साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें एम्पैथी का मतलब पता होगा, कि जब आप दूसरों के जूतों के अंदर पैर डाल के उनकी जो वॉक है वो लेने लगते हैं, तब आपको समझ में आता है कि दूसरे कैसा फील करते होंगे. इसको बोलते हैं सही मायने में विजडम. और लास्ट है हमारा करेज. करेज का मतलब ये होता है कि ब्रेवरी, लेकिन इंटेग्रिटी के साथ में एक्ट करना. ब्रेवरी का मतलब ये नहीं कि आप डिसऑनेस्ट हो जाएं, आप बेईमानी करें. ब्रेवरी के साथ साथ आप इंटेग्रिटी भी रखें और उसके साथ में किसी चीज पे एक्ट करें, इसको बोलते हैं हम करेज. आज के फाइनल थॉट की बात करें तो विक्टर फ्रैंकल ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत इंस्पायरिंग है, ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है. अगर आपको कभी भी लाइफ में डिसीजन लेने में अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इस चीज को जरूर पढ़ें कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जहां भी आपके तरफ कोई चीज आती है, कोई स्टिमुलस होता है और आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बीच में एक स्पेस होती है, और उस स्पेस में आपके पास एक पावर होती है कि आप ये चूज कर पाओ कि आपको किस तरफ रिस्पॉन्स करना है. आपको ग्रोथ की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ रिस्पॉन्स करना है, या आपको नेगेटिविटी की तरफ रिस्पॉन्स करना है. तो बेसिकली हम ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो पावर जो है वो हमेशा हमारे हाथ में होती है, उस मोमेंट के अंदर होती है, और इसी रिस्पॉन्स के अंदर हमारी ग्रोथ, हमारी फ्रीडम, हमारी हैप्पीनेस वो सही मायनों में लाई करती है. तो ये विक्टर फ्रैंकल का बहुत ही अमेजिंग थॉट है
जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए कि एक आपके स्टिमुलस और आपके रिस्पॉन्स के बीच में एक जगह होती है, उस जगह में हमारे पास एक पावर होती है और वहां पे हम सही और गलत के बीच में चुन सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या. दिस इज द फाइनल थॉट. सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग दिस एंड आई विश कि हम सब पॉजिटिव कॉग्निशन की तरफ बढ़े और हमें वो अचीव हो ताकि हम अपनी लाइफ में एक ग्रेटर सेल्फ की ओर आगे मूव कर सकें. Thank you so much. Thank you everyone for listening it, for understanding it, for inculcating it in your life. And I'm very open to questions. So if anyone of you have it, please let me know. Thank you so much, ma'am. Thank you. Venus, ma'am, please take over. Thank you. Thank you so much, Nikhil sir. Wonderful presentation on positive cognition. आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इन सभी एस्पेक्ट्स को स्टूडेंट्स के सामने रखा और जो आपके केस स्टडीज थे फातिमा एंड अंजलि एंड वेरी प्रैक्टिकली ना बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाले थे, जो बहुत सहजता से सरलता से हमारे मन मस्तिष्क में उतरते हैं. तो वेरी गुड. और आपने जो सेल्फ एफिकेसी, माइंडफुलनेस की पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में बात करना, फ्लो, एंगेज, जहाँ पे आपको सरेंडर टू वर्क होना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपने बहुत सुंदर बताया कि मीनिंग टू सेल्फ, कि हमें अपने आप के बारे में बात करनी है, एंड विजडम और करेज कि ब्रेवरी नहीं रखनी है, ऑनेस्टी रखना है और हमें अपना काम करना है. तो अगेन थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू डॉक्टर अजय सर कि हमें इतने अच्छे वर्कशॉप से आपने कनेक्ट किया और एवरीडे हम ये जो ज्ञान की जो गंगा है उसके साथ ओतप्रोत हो रहे हैं. Thank you so much to all students and sir and Nikhil sir. Thanks. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैम कि ये जो केस स्टडीज आपने पढ़ी है ये रियल लाइफ केस स्टडीज हैं. ये मेरे ही क्लाइंट्स के कुछ केसेस हैं, बस नेम चेंज्ड हैं. सो दिस इज कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सभी के साथ ही शेयर करना चाहिए. सो दिस इज रियल लाइफ केस स्टडीज, एवरी केस. जी सर. जी सर, आपके लिए बहुत क्लैप्स आ रही हैं, लगातार कोई ना कोई आइकन्स उसके ऊपर आ रहे हैं, तो वो देखकर बड़ी खुशी हो रही है. एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू टू ऑल. शायद रणबीर सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं. प्लीज रणबीर जी, पुट योर क्वेश्चन. आपने रेज हैंड किया. हैंड रेज हो गया, मैं क्लैप करना चाह रहा था. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सर एक क्वेश्चन था, जेलिसी और एनवी में मतलब मेजर डिफरेंस क्या होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है माइंडफुलनेस के थ्रू? सर अपना क्वेश्चन एक बार वापस बोलेंगे सर प्लीज, थोड़ा सा आपकी वॉइस ब्रेक हुई है. सर जेलिसी और एनवी में मेन डिफरेंस क्या होता है और इसको माइंडफुलनेस के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ओके परफेक्ट सर. सो एनवे और जेलिसी, आप अगर इसको एकदम हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा में समझेंगे कि जेलिसी मतलब क्या है कि कोई चीज उसके पास है मेरे पास नहीं है. ये होता है चीजों को लेकर, मटेरियलिज्म को लेकर. एनवे मतलब हम उस इंसान से, उसकी पर्सनालिटी से ओवरऑल जो है हमें ऐसा लगता है कि ये कहाँ है और मैं कहाँ हूँ. ये जो डिफरेंस है ये एनवे है. जब हम किसी बोलते हैं ना कि आई एनवे यू को मतलब कि आई कैन सी यू आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग बट आई एम नॉट. मैं उस पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ. हम जब यहाँ सेल्फ कंपैरिजन करने लगते हैं किसी और के साथ में, तो ये चीज है. आप इसको देखेंगे, आप शायद इसको गूगल भी करेंगे तो आपको लगेगा कई जगह पे ऐसा आएगा कि एक दूसरे को सिनोनियम इंटरचेंजेबली यूज होता है कि जेलेसी को एनवे बोलते हैं, एनवे को जेलेसी बोलते हैं. फर्क सिर्फ इतना है, एक तरफ मटेरियलिज्म है और एक तरफ हम जब खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हैं वो चीज है. और रही बात आपका सेकंड क्वेश्चन की कि माइंडफुलनेस के साथ इसको कैसे कम किया जाए, तो माइंडफुलनेस का सीधा मतलब होता है कि आप प्रेजेंट में हैं. जैसे कि मैंने इसमें कोट किया था कि हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम है, या तो हम पास्ट में जी रहे हैं या हम फ्यूचर में जी रहे हैं. पास्ट हमारा जा चुका है, हमें उससे कभी कुछ वापस जाके हासिल नहीं होगा. फ्यूचर हमारा अभी तक आया नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि उसमें क्या, कि वो कहते हैं ना कि भविष्य के गर्भ में क्या है, हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता. पर हम जीते वहीं हैं, या पीछे या इधर आगे. तो इन चीजों को खत्म करके जब हम आज में आएंगे कि आज मेरे पास कितना है, क्या है, और क्या मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं या नहीं. अगर आप आज में सेटिस्फाइड हैं तो
आप डेफिनेटली इन चीजों को हटा सकते हैं, फिर चाहे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे के पास क्या है। मैंने एक बहुत अच्छा कोट किसी इंसान से सुना था कि मुझे आज की मारुति में इंटरेस्ट है, कल की मर्सिडीज का तो पता भी नहीं है मुझे। तो अगर आज आपके पास मारुति है तो आप एंजॉय कर सकते हैं लॉन्ग ड्राइव, कल की मर्सिडीज पे जाएंगे तो आज की मारुति भी हाथ से चली जाएगी। आई होप मैं आपकी क्वेश्चन को आंसर कर पाया हूँ। यस सर, थैंक यू। Okay. Any other? Dr. Nikhil, Yeah. thank you so much. We'll meet थैंक यू सर। time. Thank you, Venus. Thank you, everybody. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.